Assalamualaikum everyone. In today's video, we are going to discuss about the general reaction of amino acid metabolism. कि किस तरह how our amino acid is going to metabolic reactions. So the reactions which are followed by the metabolism of amino acids are transamination, deamination and decarboxylation. So these are the three major reactions by which the amino acid is undergoing the metabolic reaction. So now in this lecture we are going to discuss that how it is going under the transamination, deamination and decarboxylation. So key reaction for the amino acid metabolism is the deamination, transamination and decarboxylation. So depending upon the metabolic state, now the amino acid can be regrouped or completely broken down. So now we are going to discuss that how we are breaking our amino acid. So first reaction is our transamination. So the word trans mean transfer, okay, and the word amination means amino group. So what is doing in that reaction, that we are transferring our amino group. So now we discuss that what is written. So in the transamination reaction, it is a central reaction of amino acid metabolism where an amino group is transferred from one amino acid to other, and this reaction is called as transamination because we are transferring our amino group. And what is our amino group? The amino group is our NH2 group. So we are transferring it from one amino acid into the other amino acid. So this reaction is called as transamination, and this reaction is catalyzed in the presence of an enzyme which is called as aminotransferase enzyme. So this enzyme is used for as a catalyst for this transamination reaction. And other thing is that a transamination is either specific for a particular amino acid, or they can be catalyzed transamination for several. So it doesn't mean that a specific amino acid is going to transamination. Every amino acid can undergo this reaction. So it could be specific or could not be non-specific. So amino acid, now at the next paragraph we have given an example, and in this example it is saying that the amino group linoleic acid can be converted into tryptophan, so by the reaction of transamination. So this is the example. Another example is that a keto acid mean which has ketonic group. So this is the keto acid which is analogous to the amino acid. So its structure is similar to the amino acid. How its structure is similar? You can see it has a carboxy group. So this is its carboxy group, and this is the R group, which could be anyone, and this is the C double bond also. It has some correlation and a similar structure to the amino acid. So therefore it is undergoing this reaction, and the keto group that differentiate and it become converting to अल्फा कीटो एसिड एंड अल्फा अमाइनो एसिड. ठीक है, तो ये कहाँ से कन्वर्ट हो रहा है? अल्फा कीटो अमाइनो एसिड से कन्वर्ट हो रहा है अल्फा अमाइनो एसिड के अंदर. सो किस तरह हो रहा है? ये एग्जांपल हमें यहाँ पर ये दी गई है. यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट था, और हमने क्या किया, हमने इस अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ से हटा दिया. ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो कि इसी अमाइनो एसिड में से हमने ये माइनस कर दिया है NH2 ग्रुप. सॉरी फॉर द बैड राइटिंग. तो हमने यहाँ से अमाइनो ग्रुप वी रिमूव दैम, एंड और हमने जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप, वो हमने अटैच कर दिया, मतलब ऑक्सीजन अटैच कर दी है. सो इस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, हमने ट्रांसफ़र कर दिया अमाइनो. अब ये अमाइनो ग्रुप जो है वो किसी और अमाइनो एसिड के साथ जाके अटैच हो जाएगा, उसका हिस्सा बन जाएगा. ठीक है, इस तरह से ये अमाइनो ट्रांसअमाइनेशन का रिएक्शन होता है. नेक्स्ट जो हमने देखना है, अल्फा कीटो एसिड्स अंडरगो ट्रांसअमाइनेशन फ्रॉम द अमाइनो कैन बी यूटिलाइज फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, एंड अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम, या हम इसको क्या कह सकते हैं, सिर्फ ट्रांस अमाइनेज एंजाइम भी कह सकते हैं, अमाइनो ट्रांसफरेज भी कह सकते हैं, ट्रांस अमाइनेज एंजाइम भी कह सकते हैं. वो रिस्पॉन्सिबल है इस डिग्रेडेशन के प्रोसेस का, उसी ने ही इस अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र करवाना है. इसके अलावा आपने एक और कोई एंजाइम है जिसको आपने याद रखना है, जो इस एंजाइम में भी हो सकता है, और भी जितने भी अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिक के रिएक्शन हैं उनमें ये कोएंजाइम यूज़ होता है. और वो कौन सा कोएंजाइम है? वो ये वाला कोएंजाइम है, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट. इसको हम ना PLP भी कहते हैं.
सो ये मतलब इसका काम ये नहीं है कि डायरेक्टली यूज़ नहीं हो रहा, इसने ट्रांसअमाइनेज़ को एक्टिवेट करना है। ये ट्रांसअमाइनेज़ को कहेगा कि तुम एक्टिव हो और तुम मतलब ट्रांसअमाइनेशन का रिएक्शन के परफॉर्म करो। सो हर जगह आप देखेंगे आगे हमने जितने भी अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिक रिएक्शंस पढ़ने हैं तो हर में ये पीएलपी जो है वो यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। तो आपने इसको अपने जहन में रखना है। इसके अलावा पीएलपी कैसे बनता है, मतलब पायरिडॉक्सिन कैसे बनता है, ये विटामिन B6 जो होता है पायरिडॉक्सिल, उसकी फॉस्फोराइलेशन से पायरिडॉक्सिन बनता है और वो एज अ कोएंजाइम जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये इस वाले पैराग्राफ में यही पीएलपी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, बट आप इस पैराग्राफ को नहीं लिखेंगे अपने पेपर्स में, ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बस आप ये लिखेंगे कि जो पीएलपी एंजाइम है वो असिस्ट करता है डिफरेंट एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अमाइनो एसिड की रिएक्शन के लिए, अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ पे आप लोग चलेंगे तो आप लोगों को यही पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट का पूरा स्ट्रक्चर भी दी हुई है, ये सारा कुछ दिया हुआ है, बट ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। बस आपने ये कोएंजाइम है तो अपने इसके लिए याद रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो हम अपने टॉपिक से हट जाएंगे, तो हमने अपने टॉपिक से नहीं हटना है। हम इसको जो है वो स्किप करेंगे। अगर आपके पास टाइम मिले या पेपर में आपके पास टाइम हो तो आप इसको याद कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, बट इतना ज़्यादा ये ज़रूरी नहीं है। फिर आप अपने नेक्स्ट सेक्शन पे चलेंगे जो कि है डी अमाइनेशन का। हमने पहले क्या पढ़ा, ट्रांस अमाइनेशन, जिसमें हमने ट्रांसफ़र किया था अमाइनो ग्रुप को एक अमाइनो एसिड से दूसरे अमाइनो एसिड तक, ठीक है। बट यहाँ हम क्या करें, यहाँ हम डी अमाइनेशन, तो वर्ड डी का क्या मतलब होता है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। जहाँ पर भी डी लिखा हुआ था उसका मतलब क्या होता है कि हम रिमूव कर रहे हैं। और अमाइनेशन का वही मतलब कि अमाइनो ग्रुप को, यहाँ हम अमाइनो ग्रुप को ही हटा देंगे, ठीक है। वहाँ हम एक से दूसरे में ट्रांसफ़र कर रहे थे, यहाँ हम अमाइनो ग्रुप को पूरा रिमूव कर देंगे। तो हम क्यों रिमूव करते हैं, क्योंकि हमें एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन को हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करना होता है। आपको पता है कि नाइट्रोजन हमारी बॉडी के लिए डेंजरस है, और जब ये रिलीज़ होता है अमाइनो ग्रुप तो ये अमोनिया की सूरत में रिलीज़ होता है। और आप सब लोगों को पता है कि अमोनिया इतना ज़्यादा पॉइजनस है कि हम उसको इसी फॉर्म में, मतलब अमोनिया के फॉर्म में बाहर एक्सक्रीट आउट भी नहीं कर सकते। हमें यूरिया साइकिल के अंदर जाके अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना होता है, यूरिक एसिड में कन्वर्ट करना होता है, उसके बाद जाके हम इसे अपनी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। सो इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि नाइट्रोजन की एक्सेस जो है वो हमारी बॉडी से बाहर उसका निकलना बहुत ज़रूरी है, और उसको हम बाहर इसी तरह ही निकालते हैं, हम अमाइनो एसिड की डी अमाइनेशन करते हैं, ताकि हम अमाइनो एसिड का जो वेस्ट है, अमाइनो एसिड का वेस्ट क्या होता है, अमोनिया होता है, तो उस अमोनिया को हम बॉडी से बाहर निकालें। सो इसी प्रोसेस को हम डी अमाइनेशन कहते हैं। और इसमें क्या हो रहा है कि ब्रेक डाउन हो रहा है वही अमाइनो एसिड का, क्योंकि हम लोग अमोनिया को हमने क्विकली जो है वो बॉडी से रिमूव करना है, यूरिया में कन्वर्ट करके उसकी मेटाबॉलिज्म करनी है। और जो यूरिया की सिंथेसिस है वो ग्रेट डील ऑफ एनर्जी है। यूरिया जब भी बनता है तो उसके बदले में बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी मिलती है, और एनर्जी तो हमें चाहिए है, हर बॉडी के सेल को एनर्जी चाहिए है। तो इसलिए हम अमाइनो एसिड की इस तरह मेटाबॉलिज्म करके उसको अमोनिया में कन्वर्ट करके उसको यूरिया साइकिल से पास करके यूरिया में कन्वर्ट करके हम बहुत ज़्यादा एनर्जी लेते हैं, ताकि बॉडी के हर सेल को एनर्जी जा सके। The excess of nitrogen must be transported from peripheral tissues to the liver. liver में जाना चाहिए। aspartate, glutamine, alanine, synthesis from the pyruvic acid and all these are involved in the transport system. तो ये जो 3 अमाइनो एसिड ये बताए हैं वो ये कह रहे हैं कि ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, ये ट्रांसफ़र करते हैं एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन को लीवर के अंदर, ठीक है, पेरिफेरल टिश्यू से लीवर के अंदर लेके जाते हैं। ये आगे एग्जांपल आपको दी गई है इसकी, ये डी अमाइनेशन की। तो यहाँ पर ये अमाइनो ग्रुप अटैच था, ठीक है। इसको हमने पॉजिटिव फॉर्म में ये किया कि यहाँ पर जो H था, यहाँ पर एक H था, उस H को हमने इस अमाइनो ग्रुप के साथ अटैच करवाया है, ठीक है। और हमने डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर ऐड अप करके, और यहाँ पर हम लोग क्या कर गए, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, अमाइनो ग्रुप हमारा यहाँ से रिलीज़ हो गई। ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से अमाइनो ग्रुप हम बाहर ले गए हैं और उसकी जगह ऑक्सीजन जो है वो हमने अटैच कर लिया है। तो इस तरह से हम ये डी अमाइनेशन के प्रोसेस के अंदर जाते हैं। अब ना डी अमाइनेशन की 3 टाइप्स है। कितनी टाइप है? 3 टाइप्स हैं। और कौन कौन सी हैं? एक है हाइड्रोलिटिक डी अमाइनेशन, एक है ऑक्सीडेटिव डी अमाइनेशन, एक है एलिमिनेटिव डी अमाइनेशन। तो ये टाइप्स भी आपने इसकी याद करनी है। सो अब हम आगे चलते हैं।
सबसे पहले जो हम लोगों ने डीअमाइनेशन की टाइप जो है वो कवर करनी है, तो वो है ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। अब नाम से भी आपको पता लग रहा है, ठीक है ना, आपने हर डेफिनेशन को उसके नाम से याद करना है। ऑक्सीडेटिव का क्या मतलब है, यानी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वही जो अमाइनो ग्रुप है ना उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, उसकी ऑक्सीडेशन करके और फिर उसको हम रिमूव करेंगे। ये चीज़ आ जाएगी। लिखा भी हुआ है यहाँ पर कि ऑक्सीडाइज करेंगे हम अमाइनो ग्रुप को और उसको कन्वर्ट कर देंगे एक और ग्रुप में, जो कि क्या है, सी डबल बॉन्ड एन ग्रुप, और इस ग्रुप को हम कहते हैं अमीनियम आइन। ठीक है, अमीनियम आइन। तो हमने क्या करना कि अमाइनो ग्रुप क्या था, मैं यहाँ लिखते हैं अमाइनो ग्रुप हमारा ये था ना, CH2 ग्रुप, हमने उसको ऑक्सीडाइज किया, हमने इसको इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड की इस तरह से, ठीक है, और ऑक्सीडाइज करने के बाद हमने इसे कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, सी डबल बॉन्ड एन ग्रुप में, और इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं अमीनियम आइन। तो अब क्या होगा कि जो अमाइनो एसिड का आपका फार्मूला होता है जहाँ पर सी के साथ NH2 ग्रुप अटैच होता है, वहाँ पर ही अब क्या होगा कि सी के साथ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन अटैच हो जाएगा, बस यही चीज़ होगी। ठीक है, इस तरह से हम ये ऑक्सीडेशन करते हैं और अमाइनो एसिड को चेंज करें। ये भी डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होगी, और इसके लिए जो को एंजाइम यूज़ होगा, आपने हर रिएक्शन का एक तो ये याद करना है कि उसमें हो क्या रहा है, दूसरा आपने उसके जितने भी को एंजाइम या एंजाइम जो भी यूज़ हो रहा है उस रिएक्शन के अंदर आपने वो याद करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप जो एंजाइम देख रहे हो वो तो है डीहाइड्रोजिनेज। को एंजाइम कौन सा है, यहाँ पर को एंजाइम है ये और ये। ठीक है, आपका NADH रिड्यूस हो रहा है, आपका NADPH रिड्यूस हो रहा है NADP पॉजिटिव के अंदर। ठीक है, तो ये कोएंजाइम जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रही है अमोनिया ग्रुप की। When the ammoniac यानी NH3 is added to ammonia group, it transfer to the alpha keto group, तो वो आगे फिर ट्रांसफ़र हो जाता है। बट आपने ये चीज़ नहीं जाननी है, बस आपने ये देखना है कि हमने अमोनिया ग्रुप को ऑक्सीडाइज़ किया और उसे कन्वर्ट कर दिया अमीनियम ग्रुप में। अच्छा, दूसरी जो डीअमाइनेशन की एग्जांपल है, टाइप है, वो है हाइड्रोलिटिक डीअमाइनेशन। आप इसके नाम से भी इंडिकेट हो रहा है आपको, हाइड्रोलिटिक है, मतलब हाइड्रो का क्या मतलब होता है, वाटर, और लिटिक क्या है, लाइसिस कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, साथ डीअमाइनेशन में हम अमाइनो ग्रुप को रिमूव करने के साथ साथ हम वाटर को भी रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, और तो हम लोग देखते हैं इसका कि अमाइनो ग्रुप रिएक्ट विद द वाटर इन हाइड्रोलिटिक डीअमाइनेशन। तो अमाइनो ग्रुप जो है पहले वाटर से रिएक्ट करेगा, और क्या होगा कि यहाँ पर हाइड्रोक्साइल जो ग्रुप है वो अमाइनो एसिड के साथ अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर एक एग्जांपल इन्होंने दी हुई है कि ग्लूटामाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूटामाइन कन्वर्ट होता है ग्लूटामेट के अंदर, वो हाइड्रोलिटिक डीअमाइनेशन से ही होता है, क्योंकि इसके अंदर OH जो ग्रुप है वो अमाइनो ग्रुप के साथ जाके अटैच हो जाता है। इस तरह हाइड्रोलाइसिस हो गई ना, हमने वाटर को ब्रेक डाउन किया H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में, और वही OH नेगेटिव जो है वो अमाइनो ग्रुप के साथ जाके अटैच हो गया, और इरिवर्सिबल अटैचमेंट हुई है ये, यानी ये वापसी अलग नहीं होगा। चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें, जो मर्ज़ी आगे रिएक्शन कर लें, OH ग्रुप अगर एक दफ़ा अमोनिया ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा तो वो वापसी रिमूव नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ बताई हुई है, और इसके नीचे एग्जांपल भी दी हुई है, वो भी आप मेंशन करेंगे कि आपने क्या किया, ग्लूटामाइन को ग्लूटामेट में किया कन्वर्ट। ठीक है, और आपने यही हाइड्रोलिटिक डीअमाइनेशन की, और एंजाइम कौन सा था, ग्लूटामाइनेज। हमेशा जिस भी लफ्ज़ के एंड में ASE वर्ड आएगा ना, तो आपने समझ जाना है कि वो एक एंजाइम है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि एज आ गया एंड में, तो जो भी वर्ड एज आएगा आप समझ जाओगे कि वो एक एंजाइम है। तीसरी जो टाइप आती है वो हमारे पास आती है एलिमिनेटिव डीअमाइनेशन। अब एलिमिनेट वर्ड का क्या मतलब है, आप सब लोगों को पता है कि एलिमिनेशन करना, यानी हम किसी चीज़ का रिमूवल कर रहे हैं, किसी चीज़ को बाहर निकाल रहे हैं। अब वो हम लोग किस तरह से करेंगे, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि हम एक स्मॉल जो अमाइनो एसिड है, कौन कौन से स्मॉल हैं, जैसे सिरीन हमारा एक स्मॉल है, सिट्रीन, ये हमारे स्मॉल अमाइनो एसिड हैं। तो यहाँ से हम वाटर की रिमूवल कर रहे हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड की रिमूवल कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई सल्फरस अमाइनो एसिड है, सल्फरस अमाइनो एसिड हमारे पास कौन कौन से हैं, जिनके अंदर क्या होगा, सल्फ़र होगा, और सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड हमारे पास जो है वो थोड़े से ही हैं, मतलब 2-3 ही हैं, और वो कौन से हैं,
उन अमाइनो एसिड के हमारे पास नाम है साइटीन और मेथियोनीन, ठीक है। इन दो अमाइनो एसिड के साथ, और सिस्टीन के अंदर भी है क्योंकि, लेकिन सिस्टीन के अंदर 2 सल्फ़र ग्रुप्स हैं। सो इन जो अमाइनो एसिड हैं, इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर वाटर नहीं, इनके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड रिमूव होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड हमारे पास क्या होता है, HS ग्रुप होता है, ये रिमूव होगा। बाकी जो सल्फरस अमाइनो एसिड के अलावा जो ग्रुप होंगे उनमें से तो वाटर रिमूव होगा, ठीक है, वाटर हम उनमें से निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन जो सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड है उनके अंदर से ये ग्रुप रिलीज़ हो जाएगा और फिर उसके बाद हमारे पास एलिमिनेशन हो जाएगी। सो उसके बाद, और ये भी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, PLP की प्रेजेंस में हो रहा है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि हम वहाँ वही कोएंजाइम जो है यहाँ पर भी यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने इसलिए आपको कहा था कि ये PLP जो है वो हर जगह यूज़ होने वाला है, तो इसको अपने जहन में रखिए, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। डीअमाइनेशन के जो तीनों टाइप्स मैंने आप लोगों को समझाई हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है ना वो हमारे पास एक और लास्ट जो है अमाइनो एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन का एक आ जाता है रिएक्शन, और अमाइनो ग्रुप जो है ना वो डीकार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस में भी जाते हैं। अब द वर्ड डी मीन्स रिमूवल, और कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप। जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COOH ग्रुप, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। इसको हमने रिमूव करना है अमाइनो एसिड के अंदर से, ये ग्रुप हमने निकालना है। तो अब क्या होगा, हम लोग देखते हैं कि 1 अमाइन एंड CO2, ठीक है, CO2, ये यहाँ से H निकाल दिया और CO2 फ्रॉम द प्रोडक्ट फ्रॉम व्हेन एन अमाइनो एसिड एंड कार्बोक्सिल ग्रुप इज क्लीव्ड। तो यहाँ पर इस ग्रुप के साथ साथ हम अमाइनो ग्रुप भी निकाल रहे हैं, क्योंकि ये डीकार्बोक्सिलेशन है, तो हम अमाइनो ग्रुप भी साथ निकाल रहे हैं, डीकार्बोक्सिलेशन भी कर रहे हैं। और यहाँ पर दोबारा वही कोफैक्टर यूज़ हो रहा है, PLP वाला, जो मैंने आपको पहले कहा था कि ये हर जगह जो है वो यूज़ होगा। को एंजाइम PLP है और एंजाइम जो है वो आपका डीकार्बोक्सिलेज है, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हो कि डीकार्बोक्सिलेज के एंड में भी क्या आ रहा है, ASE आ रहा है, तो ये एक एंजाइम है। सो अब वो कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर अमाइनो ग्रुप जो है उसको क्यों रिलीज़ करवाया है। अमाइन इसलिए हमने रिलीज़ करवाया है क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हिस्टामाइन जो है, इसी तरह हम लोगों की ये एक एग्जांपल हमें दी हुई है कि हिस्टामाइन को हम कन्वर्ट करते हैं हिस्टिडीन के अंदर, और ये इसी प्रोसेस के ज़रिए से हम लोग करते हैं। तो हिस्टामाइन की हम डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, उसके अंदर से COOH ग्रुप को रिमूव करके हम हिस्टिडीन बना रहे हैं। और एंजाइम इसके लिए कौन सा है, हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज, ठीक है। बस डीकार्बोक्सिलेज भी आप लिख देंगे तो भी ठीक रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हिस्टिडीन की हम डीअमाइनेशन कर रहे हैं तो उसी के नाम से ही आपने लिख देना है। हिस्टामाइन की आगे कुछ इंपॉर्टेंस लिखी हुई है कि ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में यूज़ होता है, इमिडिएटली एक्सपोजर टू एन एलर्जन, ठीक है। ये हाइपर सेंसिटिविटी कर देता है जब भी ये किसी एलर्जन के साइड पे आता है। इसके अलावा वो कहता है BAB, इसको कहते हैं हम गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। सो ये डिराइव होता है ग्लूटामाइनिक एसिड से। और बस आगे आप लोगों ने ये चीज़ नहीं लिखनी, ठीक है। बस आपने ये लिखना है कि हिस्टामाइन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। हाइपर सेंसिटिव की रिएक्शन में हिस्टिडीन किस जो है ना, मतलब यहाँ पर किस तरह से, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है कि हिस्टामाइन एक हमारा अमाइनो एसिड है, बेसिक ये अमाइनो एसिड है हिस्टामाइन, सॉरी फॉर द रॉन्ग राइटिंग। तो हिस्टामाइन को हम कन्वर्ट करें डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में इनटू द हिस्टिडीन, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और डीकार्बोक्सिलेशन करके हम इन अमाइनो एसिड को इस तरह से आपस में चेंज करवा रहे हैं, ठीक है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने देखा कि अमाइनो एसिड कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस के अंदर जाके मेटाबोलाइज होते हैं, और हम लोगों ने सारे रिएक्शन डिस्कस किए, ट्रांसअमाइनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, डीअमाइनेशन। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डीअमाइनेशन की टाइप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने आपको एग्जांपल्स करवाई हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हर पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है जो हर जगह आता है। सो इसलिए आपने इसको बार बार वीडियो को देखें और इसको समझें, और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर इसका आंसर दूँगी। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।